two types of volcanoes: central type or conical volcanoes, fissure type volcanoes, effects of volcanoes. Okay, so this is chapter 2, geography, lecture number 4. The name of the chapter is endogenetic movements. We are studying 9th standard and a portion of Maharashtra State Board. Now, central type or first let's study about volcanoes. Hot, solid, liquid and gaseous material. ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था volcanoes क्या होता है. उसमें बहुत सारा वाटर वेपर, एशेस, हॉट, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में मोल्टन रॉक निकलता है जमीन के अंदर से. एंड वो मोस्टली माउंटेनियस या प्लेन एरिया से जब निकलता है तो वो दो टाइप से निकलता है. एंड फर्स्ट इज सेंट्रल टाइप और कॉनिकल volcanoes and second is fissure type volcanoes. So we are going to study both and we are going to see the effects of volcanoes. Three small topics we are going to cover today. It will be not more than 10 minutes lecture. Okay, and after we are going to complete with this chapter, we are going to start with history. Okay, we are studying chapter number 2, endogenetic movements. It is 4th lecture of endogenetic movements and we are going to complete this chapter today. Okay, finally. Central type or conical volcanoes. During eruption, the molten magma comes out through a pipe like vent inside the Earth's surface. The lava spreads around the mouth of this vent when it comes out. As a result, cone-shaped volcano mountains start forming, and conical volcanic mountains are formed. Mount Fujiyama in Japan, Mount Kilimanjaro in Tanzania are the examples of central type volcano mountains. Okay, now Mount Kilimanjaro and Mount Fujiyama, these are the two examples of conical or central shaped volcanic eruption mountains. Now as you can see here, we have conical or central type volcanic erupted mountains. ये एक कोन की तरह होता है, इन्वर्टेड कोन, जिसका टिप जो होता है वो ऊपर होता है और वही वो टिप से ही लावा और मैग्मा बाहर आते हैं एंड इट स्प्रेड्स इवनली इन ऑल डायरेक्शंस. उस माउंटेन के आजू बाजू वो स्प्रेड होता है और माउंटेन फॉर्म होता है जब वो मैग्मा या लावा जो भी तुम लोग बोलो उसको, वो जब कूल हो जाता है तब. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज फिशर टाइप वोल्केनोस. ड्यूरिंग eruption when the magma comes out not from a single vent, not like a conical shaped mountain but from the cracks of the land. जब किसी माउंटेनस एरिया से नहीं, जब किसी माउंटेन के पीक से नहीं, बल्कि कोई पर्टिकुलर एरिया से जब वोल्केनोस बाहर आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, then it gets spread unevenly. That particular thing is called fissure type volcanoes. It creates crack on the land. It is mainly found in Deccan plateaus of India. ठीक है. And these volcanic eruptions spread unevenly in all directions or the direction which has more of a slope. ठीक है, समझ में आ रहा है. सेंट्रल टाइप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीक ऑफ द माउंटेन से इन्वर्टेड कोन टाइप माउंटेन फॉर्म होता है जब वो वोल्केनिक इरप्शन होता है. और फिशर टाइप में क्या होता है, इट स्प्रेड्स अनइवनली फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द लैंड. इट डजंट हैव एनी desired amount of proportion from where it is coming. If we are standing right now over here, it can come from this land as well. जब अगर ये वाले लैंड से, प्लेन एरिया से अगर बाहर आता है तो उसको फिशर टाइप वोल्केनोस बोल सकते हैं हम लोग. अगर माउंटेन के ऊपर से आ रहा है, वो भी माउंटेन की पीक से, फॉर्मिंग अ कॉनिकल माउंटेन, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सेंट्रल टाइप वोल्केनिक इरप्शन. ओके, this was just a small concept of volcanoes. So now we are going to end with this chapter with last topic, that is effects of volcanoes. There is one more topic which has been given to you in this book, but I am not going to teach you right now. When we are going to start with our classes, regular classes, I am going to teach you that particular topic in our classes only. Just because वो particular चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे. I am not going to explain you over here because वो possible नहीं है कि मैं यहाँ पर explain करूँ. Just because we have a diagram over here, okay, and this diagram needs योर फिजिकल अटेंशन एज वेल. मतलब अगर मैं तुम लोग से इंटरेक्ट करूंगा
तभी ही वो पर्टिकुलर चीज़ तुम लोग को समझ में आएगी। ये चीज़ तुम लोग को तभी ही समझ में आएगी, बिना उसके समझ में आ नहीं सकती है। इफ़ यू वांट we can you just mark and keep it in your textbook or somewhere else कि सर ने ये पढ़ाया नहीं था, सर को ये पूछना ज़रूरी है, and I'll be teaching you, that is my job and you have to learn from me. Okay, now effects of volcanoes, obviously बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल मतलब डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं बट इजी टू अंडरस्टैंड है। सो पहला है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एज यू ऑल नो, अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अगर हमारे इधर ही होता है तो ऑब्वियसली विल डाई, ठीक है। Sometimes tsunami gets generated due to volcanic eruption occurring below ocean floors. जब volcanic eruption ocean floors के नीचे होता है तो obviously a land is formed inside the oceanic surface, ठीक है। ओशन के सरफेस पे, ओशनिक बेड्स पे, जो सी बेड्स है उस पे अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो एक लैंड या तो ऊपर आ जाता है या तो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से सी सरफेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट कैन क्रिएट अ सुनामी टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, dust, smoke, ash, gases, water vapor, etc. remains in the atmosphere for long time. This may create environmental problems. Now, ह्यूमन बींग्स के वजह से ही नहीं, नेचुरली भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से जो भी जहरीले गैसेस उससे बाहर आ रहे हैं, दैट कैन क्रिएट डिजास्टर सिचुएशन, एनवायरमेंट को वो डिस्टर्ब कर सकता है। लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश। नाउ दिस इज अ गुड थिंग। जो वॉल्केनोस का जो ऐश है, जो राख है, उससे हो सकता है कि लैंड फर्टाइल हो जाए, हो सकता है नहीं, होती ही है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर ऐश हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ minerals, vitamins and all the things which a soil requires to get huge amount of fertility. Many minerals are found near the earth's surface because of lava. Obviously ये जो लावा है ये एक molten rock है, ये बहुत बड़ा अमाउंट में molten rock है। अंदर का जो पत्थर है वो बाहर आ गया है पिघल के। Obviously अंदर तक हम लोग डिग करके जा नहीं सकते, we cannot do mining activity inside the earth's surface. So what will happen over here is कि जो अंदर का जो फ्रेश मिनरल वाला लावा है, जो मतलब रॉक है, वो पिघल के बाहर आया है, वो सारे मिनरल्स को भी लेकर आया है। जब हम लोग उस पत्थर को तोड़ेंगे, जब हम लोग उस पर्टिकुलर वॉल्केनो जो अभी ठंडा हो चुका है, जो रॉक में फॉर्म हो चुका है, अगर हम लोग ने उसको तोड़ा तो अंदर से हम लोग को वो सारे मिनरल्स मिल सकते हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर है। इट इज़ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अंदर तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है तो वो जो मोल्टेड रॉक बाहर आया है उससे हम लोग को मिनरल्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल बी अ ह्यूज बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वालिटी और क्वांटिटी का मिनरल होगा, ठीक है। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और एट टाइम्स एन आइलैंड में इवन डिसअपियर। या तो आइलैंड डिसअपियर हो जाएगा या तो एक आइलैंड बन के आ जाएगा। सी वी हैव एन आइलैंड कॉल्ड सुनामी आइलैंड इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट मालवन, ठीक है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मालवन एक तालुका है, वहाँ पर मालवन एक विलेज है, वहाँ पर उन लोग ने एक देवबाग नाम की बीच है, वो देवबाग बीच में जो है एक आइलैंड इवॉल्व होके आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सुनामी, ठीक है। 2003 या 2 में कुछ सुनामी आई थी, तो सुनामी की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर एक लैंड इवॉल्व होके आ गया है और उस पर्टिकुलर लैंड को लोग ने नाम सुनामी आइलैंड दे दिया है। एंड दैट पर्टिकुलर लैंड इज़ वेरी हार्मलेस, मतलब बहुत अच्छा है, वहाँ पर खूबसूरत है बहुत जगह, वो उसके चारों बाजू पानी है। इट हैज़ फॉर्म्ड लाइक एन आइलैंड, छोटा सा एक आइलैंड, सुनामी आइलैंड उन लोगों ने नाम दिया है और बहुत ज़्यादा इट इज़ ब्यूटीफुल। इफ़ यू वांट यू कैन विजिट आफ्टर दिस लॉकडाउन समडे, ठीक है, should visit actually. Lakes are formed at the mouth of the craters of dead volcanoes when rainwater accumulates in them. Now, अभी obviously जो volcanic eruption हुआ है उसमें जो volcanoes हैं जो ठंडे हो चुके हैं, रेनफॉल के टाइम पे उनके क्रैक्स और उनके जो शेप्स जो मतलब पॉन्ड जैसा शेप बन जाता है उसमें, तो उसमें पानी जमा हो जाता है। एंड डोंट बिलीव मी, वो रॉक सबसे साफ रॉक है एंड उसमें जो पानी जमा होगा दैट विल बी द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। उसमें बहुत सारे मिनरल्स तुम लोगों को मिलेंगे जस्ट बिकॉज वो जो मोल्टेड रॉक था, वो जो रॉक है उसके मिनरल्स पानी में घुल मिल जा रहे हैं एंड द वाटर इज बिकमिंग बहुत ज़्यादा नरिश्ड फॉर्म ऑफ वाटर रहेगा, न्यूट्रिटिव एक तुम लोग बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन्स मिनरल्स एंड ऑल जो चीज़ें हम लोग को चाहिए रहते हैं, जैसे बिस्लेरी का पानी होता है जो बोलते हैं लोग, बहुत सारे मिनरल्स है, वो वाले मिनरल्स हम लोग को उन सारे वोल्केनिक इरप्टेड रॉक के ऊपर पड़े हुए पानी में भी मिल सकते हैं हम लोग को, ठीक है।
So this was a small chapter. I'll be doing editing right now and then पोस्ट करता हूँ मैं, और फिर पोस्ट होकर तुम लोगों को तो मिल जाएगा, ठीक है. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. शेयर करो अपने फ्रेंड्स को एंड मेक इट अ ह्यूज वन. I am not taking lectures very frequently. It took me 2 weeks to complete this chapter just because I'm busy right now and checking my board examination papers. Also, don't go outside because it is too huge. बहुत ज़्यादा गर्मी है. Somewhere around it is 38 degrees and you will feel the heat just because the air is pure. The air is not getting filtered. जो sunrays आ रहे हैं वो फिल्टर होके नहीं आ रहे हैं एयर से. इट इज़ कमिंग डायरेक्टली ऑन योर बॉडी. द अल्ट्रावायलेट रेज आर टचिंग योर बॉडी डायरेक्टली. पहले हमारे इधर पोल्यूशन होता था तो सनराइज भी हमारे इधर डाइल्यूट होके पहुंचते थे जस्ट बिकॉज उसको बीच में बहुत सारे गैसेस और केमिकल सब्सटेंसेस का ऑब्स्टिकल्स मिलता था. बट अभी वो ऑब्स्टिकल नहीं मिलता है. इसके एयर क्लीन होने की वजह से जो हमारे सनराइज है वो हमको एकदम प्योर फॉर्म में मिल रहा है, जिसकी वजह से इट इज़ हार्मिंग ह्यूमन बींग्स अ लॉट. तो पोल्यूशन एक टाइप का था तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा भी था. बट पोल्यूशन नहीं है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट राइट नाउ. डोंट गो आउटसाइड, स्टे एट होम. पढ़ाई करो, सो खाओ, पढ़ाई करो, सो खाओ, और कुछ काम नहीं है. और कुछ अगर है तो वो करो बट बाहर मत जाओ. विंडो से बाहर देखो एंड फील दैट यू आर आउटसाइड, ठीक है. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे क्वारंटाइन. अभी लॉकडाउन 17 को ख़त्म हो रहा है. प्रे करो कि हमारा जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड ना हो, क्लास चालू हो जाए और ये कोरोना वायरस का जो डिजीज़ है ये फटाफट ख़त्म हो जाए. वी डोंट वांट दिस राइट नाउ. अभी इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, बस हो गया. अभी मतलब कितना स्प्रेड होएगा, हो गया ना, अभी ख़त्म. मास्क पहन के हम लोग क्लास में बैठेंगे और क्या. बट अभी चाहिए नहीं. अब क्या टाल गए घर पे बैठे बैठे, बस हो गया. अभी हेल्थ इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे. सो ध्यान रखो खुद का, अपने पेरेंट्स का, और सब एक दूसरे के साथ खुश रहो. जस्ट बिकॉज मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है इस पर्टिकुलर चीज़ में. एंड आई विश यू पीपल दैट कि तुम लोग सेफ रहो, ठीक है. अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू स्टे सेफ एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट अगेन टू नॉर्मल रूटीन. अगर हम लोग सब सेफ रहेंगे तो हमारी नॉर्मल रूटीन फटाक से चालू हो जाएगी. सबको ऐसा सोचना चाहिए. जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए. ऑल्सो वेरी वन इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ हेल्प योर स्ट्रे डॉग्स. अगर कहीं तुम लोग के पास स्ट्रे डॉग्स तुम्हारे आजू बाजू दिखते हैं तो उनको थोड़ा बहुत खाना डाल दो. जस्ट बिकॉज उनके पास कोई जरिया नहीं होता है खाने का. तुम लोग ही होते हो एक जरिया, और हम लोग ही घर में बैठे हैं और उन कुत्तों को ध्यान नहीं दे रहे हम लोग. सो वो लोग मरते जाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डॉग्स. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स. We need to see that we are planting more and more trees day by day so that the environment which will get degrade after the lockdown should not get degrade. हम लोग को environment को clean रखना है और वो हमारी जिम्मेदारी. You people are the future of India. Okay, so I am winding up my lecture over here. Actual lecture से बड़ा तो कुछ और ज़्यादा हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, thank you so much.